हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। Disclaimer: The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ए डीलर ऑफर्ड ए मशीन फॉर सेल फॉर 27,500 rupees, but even if he had charged 10% less, he would have made a profit of 10%. The actual cost of the machine is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A dealer offered a machine for sale for 27,500, but even if he had charged 10% less, he would have made a profit of 10%. The actual cost of the machine is। आंसर होगा थर्ड, 22,500 रुपीज। सॉल्यूशन: एज्यूमिंग कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं x रुपए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 110% of x equal to 27,500 multiple 100 minus 10 upon 100. Hence x बराबर 27,500 multiple by 9 by 10 multiple by 10 by 11 equal to आएगा 22,500 rupees। आगे देखते हैं। If the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, then the loss percent is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, comma, then the loss percent is। आंसर होगा ऑप्शन डी 25। सॉल्यूशन: यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.2.2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 CP equal to 20 SP, तो CP upon SP equal to 20 upon 15 equal to 4/3। तो let cost price equal to 4x rupees and selling price equal to 3x rupees। इसलिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4x मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 1/4 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 25%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। If the cost price of 15 articles is equal to the selling price of 12 articles, then find gain percentage। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the cost price of 15 articles is equal to the selling price of 12 articles, comma, then find gain percentage। आंसर होगा ऑप्शन ए 20। सॉल्यूशन: यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.1.2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 CP equal to 12 SP और CP upon SP equal to 12/15। So let the cost price equal to 12x and selling price equal to 15x। Hence
gain percentage equal to 15x minus 12x divided by 15x multiple by 100 इक्वल टू आ जाएगा 20%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। On the eve of Gandhi Jayanti, Gandhi Ashram declared a 25% discount on silk. If the selling price of a silk sari is 525 rupees, then what is its mark price? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। On the eve of Gandhi Jayanti, Gandhi Ashram declared a 25% discount on silk. If the selling price of a silk saree is 525 rupees, then what is its mark price? आंसर होगा ऑप्शन ए 700 rupees. Solution: SP equal to 525 rupees. So assuming mark price equal to X, the SP after 25% discount equal to X minus 0.25X equal to 0.75X. According to question, 525 equal to 0.75X, hence X equal to 700 rupees. ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A watch is sold at a profit of 30%. Had it been sold for 80 rupees less, there would have been a loss of 10%. What is the cost price of the watch? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A watch is sold at a profit of 30%. Had it been sold for 80 rupees less, there would have been a loss of 10%. What is the cost price of the watch? आंसर होगा ऑप्शन बी 200 rupees. Solution: assuming cost price equal to 100%. According to question, 130% equal to 90% plus 80, यानी 40% equal to 80, 1% equal to 2 आ जाएगा। Hence 100% equal to 200, यही इसका आंसर बनेगा। So the cost price is 200 rupees. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper marks his goods 20% above his cost price and gives 15% discount on the mark price. His gain percent is 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A shopkeeper marks his goods 20% above his cost price and gives 15% discount on the mark price. His gain percent is, आंसर होगा ऑप्शन सी 2%. Solution: using concept 8.6. Let cost price equal to 100 rupees. Then mark price equal to हो जाएगा 20% ज्यादा है तो 120 rupees. तो डिस्काउंट इक्वल टू 15% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 15 मल्टीपल बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 18 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 120 माइनस 18 इक्वल टू 102 रुपीज। हेंस गेन परसेंट इक्वल टू 102 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल बाई 100% इक्वल टू आएगा 2%, और यही आंसर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 300 rupees एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. Had it been sold to 35 rupees, the loss percentage would have been. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। An article is sold for 300 rupees at a profit of 20%. Had it been sold to 35 rupees, the loss percentage would have been. आंसर होगा ऑप्शन बी 6। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.2.2। एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल प्राइस इक्वल टू 300, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इक्वल टू 20% है। 120% ऑफ कॉस्ट सीपी इक्वल टू 300, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, तो सीपी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 250 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 235 रुपीज। So loss percentage equal to 250 minus 235 divided by 250 और मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आएगा 6%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। Hence loss percentage equal to 6%। आगे बढ़ते हैं। A sells an article to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 1200 rupees, then the cost price of the article originally in rupees is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 1200 rupees, then the cost price of the article originally in rupees is। आंसर होगा ऑप्शन डी 800 रुपीज। सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, assuming original cost price of article equal to x rupees, x multiple by 120 divided by 100 multiple by 125 divided by 100 equal to 1200 rupees। तो x बराबर निकल कर आएगा 1200 मल्टीपल बाई 100 मल्टीपल बाई 100 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल बाई 125, हेंस x इक्वल टू 800 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What single discount is equivalent to successive discount of 20% and 15%? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What single discount is equivalent to successive discount of 20% and 15%? आंसर होगा ऑप्शन बी 32%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.10। यूजिंग successive discount equal to a plus b minus ab upon 100. Here a and b are two discounts और वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे इक्वल टू 20 प्लस 15 माइनस 20 मल्टीपल बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 32%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए फ्रूट सेलर बायज और oranges at the rate of 10% per dozen and sells at the rate of 12% per dozen. His gain percentage is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A fruit seller buys oranges at the rate of 10% per dozen and sells at the rate of 12% per dozen. His gain percent is, आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.1.3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 dozen oranges equal to 10 rupees. Selling price of 1 dozen oranges equal to 12 rupees. So gain percentage equal to 12 minus 10 divided by 10 multiple by 100 इक्वल टू आ जाएगा 20%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If the selling price of 10 articles is equal to the cost price of 11 articles, then the gain percent is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the selling price of 10 articles is equal to the cost price of 11 articles, then the gain percent is, if the selling price of 10 articles is equal to the cost price of 11 articles, then the gain percent is, आंसर होगा ऑप्शन ए 10। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.1.2, according to question 10 SP equal to 11 CP, तो SP upon CP equal to 11 by 10. Hence profit percentage equal to 11 minus 10 upon 10 multiple by 100 इक्वल टू आ जाएगा 10%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए शॉपकीपर परचेजेस कैशू नट एट 250 rupees per kilogram and sells it at 10 rupees per 50 grams, then he will have, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। इफ ए शॉपकीपर purchases cashew nut at 250 rupees per kilogram and sells it at 10 rupees per 50 grams, then he will have, आंसर होगा ऑप्शन सी 20% प्रॉफिट। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.2.2, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10 rupees per 50 grams और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा 10 by 50 rupees। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इक्वल टू आएगा 10 by 50 मल्टीपल बाई 1000 इक्वल टू 200 rupees। So loss percentage equal to 250 minus 200 divided by 250 multiple by 100 equal to आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। आंसर होगा ऑप्शन सी 16.2/3%। Solution using concept 8.2.2, if selling price was 100 rupees, then 20% loss बराबर 20 rupees, CP बराबर 120 rupees,
Hence, loss percentage on CP equal to 20/120 multiplied by 100 इक्वल टू 16 2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। By selling an article for 450 rupees, I lost 20%. For what amount should I sell it to gain 20%? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। By selling an article for 450 rupees, I lost 20%. For what amount should I sell it to gain 20%? आंसर होगा ऑप्शन डी 675 रुपीज। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 450 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस 20। तो SP2 इक्वल टू निकल कर आएगा 450 मल्टीपल बाई 120 अपॉन 80 इक्वल टू 675 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The mark price of a table is 12,000 rupees if it was sold for 10,500 rupees after allowing a certain discount. Then the rate of discount is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The mark price of a table is 12,000 rupees if it was sold for 10,500 rupees after allowing a certain discount. Then the rate of discount is, आंसर होगा ऑप्शन ए 12.5%। सॉल्यूशन, assuming discount equal to D%, according to question D upon 100 multiplied by 12,000 equal to 12,000 minus 10,500. D upon 100 multiplied by 12,000 equal to 1,500. Hence D बराबर 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। The cost price of an article is 40% of its selling price. What percent of the cost price is selling price? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The cost price of an article is 40% of its selling price. What percent of the cost price is the selling price? आंसर होगा ऑप्शन डी 250%। सॉल्यूशन, assuming selling price equal to 100 rupees. 40% of selling price equal to 40 rupees. So cost price equal to 40 rupees. Hence required percentage equal to 100 divided by 40 multiplied by 100 इक्वल टू आ जाएगा 250%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। By selling an article for 21,000 rupees, a man gains 5% of profit. To get a profit of 15%, he has to sell it for, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। By selling an article for 21,000 rupees, a man gains 5% of profit. To get a profit of 15%, he has to sell it for,
आंसर होगा ऑप्शन सी 23,000 रुपीज। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 105% equal to 21,000 rupees, 100% equal to 21,000 मल्टीपल बाई 100 अपॉन 105 इक्वल टू आ जाएगा 20,000 रुपीज। तो सीपी इक्वल टू 100% इक्वल टू 20,000 रुपीज। Hence, SP with 15% profit equal to 20,000 multiple by 115 divided by 100 इक्वल टू आएगा 23,000 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। If the ratio of cost price and selling price of an article is 10:11, the percentage of profit is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। If the ratio of cost price and selling price of an article is 10:11, the percentage of profit is, आंसर होगा ऑप्शन बी 10। सॉल्यूशन, यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.1.2, cost price divided by selling price equal to 10/11. Let cost price equal to 10x rupees and selling price equal to 11x rupees. इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाय 100। 11x माइनस 10x डिवाइडेड बाय 10x मल्टीपल बाय 100, तो ये आ जाएगा 10% और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A sells an article to B at a gain of 10%. B sells it to C at a gain of 5%. If C pays 460 rupees for it, what did it cost to A? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sells an article to B at a gain of 10%. B sells it to C at a gain of 5%. If C pays 462 rupees for it, what did it cost to A? आंसर होगा ऑप्शन डी 400 रुपीज। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन assuming cost price to A equal to x rupees, x multiple by 110 upon 100 multiple by 105 upon 100 इक्वल टू 462। सॉल्व करने के बाद x बराबर निकल कर आएगा 400 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Hence cost to A equal to 400 rupees। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल डिस्काउंट ऑफ, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल डिस्काउंट ऑफ, आंसर होगा ऑप्शन डी 28%। सॉल्यूशन, यूजिंग कॉन्सेप्ट 8.10, यूजिंग सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर्मूला, डिस्काउंट इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ए 10 है, बी 20 है, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीपल बाई 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 28% और ये इसका राइट आंसर बनेगा। If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to selling price will be,
4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to selling price will be। आंसर होगा ऑप्शन सी 1:3। सॉल्यूशन। If CP was 100, then 200% profit will be 200। SP equal to 200 plus 100 equal to 300 हो जाएगा। Hence CP is to SP equal to 100 is to 300 equal to आ जाएगा 1:3। Successive discount of 10%, 20% and 30% is equivalent to single discount of। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Successive discounts of 10%, 20% and 30% is equivalent to single discount of। आंसर होगा ऑप्शन बी 49.6%। सॉल्यूशन। सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20%, 30% इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 100, 10% मल्टीपल बाई 90 अपॉन 100, 20% डिस्काउंट है मल्टीपल बाई 80 अपॉन 100, 30% डिस्काउंट है मल्टीपल बाई 70 अपॉन 100। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली आएगा 49.6%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A man sold an article at a loss of 20%. If he sells the article for 12 rupees more, he would have gained 10%. The cost price of the article is। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man sold an article at a loss of 20%. If he sells the article for 12 rupees more, he would have gained 10%. The cost price of the article is। आंसर होगा ऑप्शन बी 40 rupees। Solution। Assuming cost price equal to 100%, according to question, 80% equal to 110% minus 12, तो यहां से आएगा 30% equal to 12। Hence 100% equal to 12 by 30 multiple by 100 equal to आ जाएगा 40, और ये इसका राइट आंसर होगा। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 40 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए बुक सेलर if he sells a book at mark price after enjoying a commission of 25% on mark price will be। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The profit percent of a book seller if he sells a book at mark price after enjoying a commission of 25% on mark price will be। आंसर होगा ऑप्शन डी 33.33%। Solution using concept 8.1.1 and 8.1.2, assuming price of book equal to 100 rupees, तो 25% ऑफ 100 इक्वल टू 25 कमीशन अमाउंट है।
एक्चुअल रेट इक्वल टू 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 रुपीज। तो प्रॉफिट इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 रुपीज है। हेंस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 25 अपॉन 75 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू 33.33%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।